बिस्मिल्लाह। اس کے بعد جو اگلی انٹری ہیں وہ آتی ہیں جی یہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نوٹس کی، اور ڈیبٹ نوٹ کی انٹری تب استعمال ہوگی جب ہم کسی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا چاہیں گے، مثلا جیسے ہمیں کمپنی کی طرف سے کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جسے وہ کریڈٹ نوٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے تو ہم نے ان کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے۔ یہ جب کریڈٹ نوٹ ہمیں ملے گا کمپنی کی طرف سے تو ہم یہاں پہ ڈیبٹ نوٹ کی انٹری کریں گے۔ جیسے یہ والی انٹری کی ہوئی ہے 22/3 میں 2023 کے لیے تھی، اس طرح میں اس کو کرتا ہوں یہ 25/23 اور نمبر اس کا ایک ہی رہنے دیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی کریڈٹ نوٹ منتھلی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اب یہ کریڈٹ نوٹ ہمیں کس میں ملا ہے جی ڈسکاؤنٹ آن پرچیز، یہ اکاؤنٹ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے ڈیبٹ نوٹ پہ، اور یہ آ جائے گا کس سے ملا ہے، فرض کریں جی آپ کو ملا ہے اوساکا سے، ٹھیک ہے، کریڈٹ نوٹ آپ نے پرچیز کی ہے ان سے کافی ساری، تو باقی آپ کو ڈسکاؤنٹ ایک تو انوائس کے اوپر مل جاتا ہے، باقی جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ ہمیں ملتے ہیں بعد میں منتھ اینڈ پہ، کچھ منتھ اینڈ میں مل جاتے ہیں، کوئی کوارٹرلی ملتے ہیں، کوئی ایئرلی سال کے بعد آپ کو ملتا ہے، تو جس قسم کا بھی ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے گا ہم نے انٹری اسی طرح کرنی ہے کہ جس ڈیٹ میں ہمیں ملے گا کریڈٹ نوٹ، جس میں ہم نے کریڈٹ نوٹ دیا ہوا ہے اسی انٹری میں ہم نے ڈیبٹ نوٹ انٹر کرنا ہے، اور یہ ہمارا کمپیوٹر نمبر آ جائے گا۔ یہاں پہ ریفرنس نمبر میں آپ نے ان کا جو نمبر ہوگا کریڈٹ نوٹ کا نمبر ریفرنس نمبر وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے، جو بھی اس کا سیریل نمبر آتا ہوگا اس ڈاکومنٹ کا، یا ان کے لیجر سے دیکھ کے یہ آ جائے گا ان کا کریڈٹ نوٹ کا نمبر۔ یہ آپ نے اوساکا یہاں سے سلیکٹ کر لیا، اوساکا کے لیجر سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے آپ کریں گے نریشن میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں جی ڈیبٹ نوٹ اگینسٹ اوساکا سی ان کا کریڈٹ نوٹ نمبر، اور اس کا آپ نے نمبر دے دیا، اور یہاں پہ آپ نے اس کی اماؤنٹ دے دی روپیز پر کریں کہ وہ ہمیں ریٹیل کے اوپر جو ہے 3%، جیسے ہم نے یہ والی ہم سے پرچیز کی ہے ٹرانزیکشن پہ گئے پرچیز انوائس ہے، اور یہ ہے جی ہماری اوساکا سے یہ ہم نے پرچیز کی تھی، اور یہاں پہ ہمیں 8% ڈسکاؤنٹ ملا ہے، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ 5% یہ ڈسکاؤنٹ ہمیں مزید دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا منتھ اینڈ، تو اور جو 5% ہے ریٹیل پرائس کے اوپر ملے گا، ریٹیل کا اگر ہم یہاں سے دیکھیں کتنا بنا 5 65 3,000، اس کا 5% ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، یہ ریٹیل پرائس ہے کیونکہ ہم نے پرچیز اسی طرح انٹر کی ہے کہ ریٹ کی جگہ پہ ریٹیل آ گیا، تو میں اسی کی اماؤنٹ کو دیکھ لیتا ہوں، تو یہ بنے گی 2,10,000 اس کی بنی ہے، اور 2,37,000 یہ والی بنی ہے، تو ٹوٹل یہ بن گئی 5,65,500 5,65,500 ملٹیپلائی بائی 3/100 3%، ٹھیک ہے نا، تو یہ بن گئی 16,965، ٹھیک ہے، اگر آپ کو 5% سارے کا سارا مل جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے 5,65,000، اور کوانٹٹی آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ، کتنی بنے گی 25 بنے گی، ٹھیک ہے نا، یہ والی 25 ٹھیک ہے 25 کوانٹٹی 5,65,000 کا 5% جو ہے وہ اب یہاں پہ لکھ دیں، یہاں پہ لکھ دیں 5%، ٹھیک ہے جی 5% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا ہے اتنی کوانٹٹی پہ، اور یہ اس کی ویلیو بنی ہے،
تو اب یہاں پہ نریشن میں لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ایکسپینس اکاؤنٹ میں. یہاں پہ آپ نے ڈسکاؤنٹ سیٹ کرنا ہے کہ ڈسکاؤنٹ آن پرچیزز اب یہ منتھلی ہے یا کوانٹٹی پہ ہے یا کوارٹرلی ہے یا یہ کیش پہ ڈسکاؤنٹ ہے. جو بھی ہے وہ آپ اس کو فرض کریں کہ یہ منتھلی ہے تو میں نے یہاں سے منتھلی اس کو سیٹ کر لیا کہ پورے مہینے میں ہم نے جتنی پرچیز کی ہیں 8% انہوں نے انوائس کے اوپر دے دیا اور 5% جو ہے وہ انہوں نے اس پر ہمیں کریڈٹ نوٹ دے دیا. تو جو بھی لاسٹ ڈیٹ ہوگی منتھ کی اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ اس کو ڈال لیا اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے اس کو 5,65,000. ٹھیک ہو گیا جی. ایسے یہ آپ کا اکاؤنٹ اس کا بن گیا. اگر ہم وثاقہ کا آپ یہاں سے لیجر دیکھیں گے فائنینشیل رپورٹ پہ گئے اور یہاں سے ہم نے لکھا جی وثاقہ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 25 بیٹریاں ہم نے پرچیز کی 6,22,670 کی اور اس کے بعد بینک پیمنٹ جو ہے وہ ہم نے کی 5 لاکھ کی اور اس سے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے پیمنٹ کی. تو پرچیز کریں گے تو ان کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا ہماری طرف اور جب ہم پیمنٹ کریں گے تو ڈیبٹ ہو جائے گا یعنی ان کا بیلنس کم ہو جائے گا. مزید 1,22,000 ہماری طرف رہ گیا. پھر انہوں نے ہمیں کریڈٹ نوٹ دے دیا 5,65,000. نہیں کتنا بنا تھا 5,65,000 کا ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا. 5,65,000 ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا ٹرانزیکشن پہ گئے اور یہاں سے میں دیکھا پرچیز انوائس اور یہ تھی 5,65,500 5,65,500 ضرب آگے 8,65,500 5,65,500 اور ضرب 5% تو یہ بنا 28,275. 28,275 کا ہم نے یہ کریں گے ڈالا 28,275. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ڈالا اس کو کلوز کیا اور اس کی کاؤنسل میں چیک کی تو یہ 28,275 سے یہ ڈیبٹ نوٹ ہو گیا 5%. اس کا جو بھی آپ یہاں پہ ریفرنس پہ لکھ دیتے ہیں یا کہیں پہ بھی نریشن میں جا کے پتہ ہوگا یہ 5% ہے ریٹیل پرائس کا. تو یہ آ گیا. اب 94,397 روپئے جو ہے وہ ہماری طرف مزید رہتے ہیں. تو یہ جب ہم ان کو پے کریں گے تو یہ لیس ہو جائے گا. مزید پرچیز ڈالیں گے تو پھر کریڈٹ جو ہے ان کا انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ہم نے چیک کر لیا اس کا لیجر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی این کا مطلب ہے ڈیبٹ نوٹ. انہوں نے ہمیں کریڈٹ نوٹ دیا, ہم نے اس کو ڈیبٹ نوٹ میں انٹر کر دی کیونکہ ہم نے ان کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی جب اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوگی انہوں نے جب لیجر ہے وہ ہم سے منگوائیں گے کمپنی سے تو وہاں پہ یہ والی اماؤنٹ کس سائڈ پہ آ رہی ہوگی کریڈٹ پہ. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس کو ڈال دیا تو یہ بیلنس اب رہ گیا. یہ ہے جی کریڈٹ نوٹ کی جو انٹریز ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے ڈیبٹ نوٹ کی. ٹھیک ہے, اور یہ کریڈٹ نوٹ ہے اگر ہم اپنے کسٹمر کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر ہم یہ والا کریڈٹ نوٹ استعمال کریں گے تو ان کا اکاؤنٹ کسٹمر کا جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا. اب اس کے بعد ایک انٹری اس میں رہتی ہے یہ والی اسٹاک ٹرانسفر کی. اب اسٹاک ٹرانسفر جو ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو ملٹیپل اکاؤنٹ ہیں وہ سارے جو آپ کے اسٹور ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ شاپ پہ الگ کرنا چاہتے ہیں کہ شاپ کے اندر کتنی بیٹری ہے, گودام میں کتنی رہ گئی ہیں, یا آپ کے 2-3 گودام ہیں تو آپ ان کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس گودام میں اتنی ہے, اس گودام میں اتنی ہے. اب ایک دوسرے گودام سے آپ جس وقت دوسرے گودام کے اندر ایک گودام سے دوسرے گودام کے اندر جب اسٹاک لے کے آئیں گے تو پھر آپ نے کوئی پرچیز کوئی سیل انوائس اسٹیکرس نہیں ڈالنی بلکہ آپ نے یہ والا اسٹاک ٹرانسفر والا آپشن استعمال کرنا ہے. مثلاً یہ والی ڈیٹ ہے جی 25/4/2023 اور یہ اس کا ٹرانسفر نوٹ کا نمبر آ جائے گا 1 2 3 یہ
करता रहेगा। रेफरेंस नंबर में कोई है आपका वॉचर तो आप यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो रहने दें। तो यहाँ से वो आपने देखना है कि आप गोदाम से शॉप में ले जाना चाहते हैं या शॉप से गोदाम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से गोदाम मैंने सेलेक्ट कर लिया कि गोदाम से ये कहाँ पे आ रहा है जी, ये शॉप पे आ रही हैं बैटरी, शॉप पे कम पड़ गई हैं, सेल हो गई हैं। अब दोबारा से बंदा गोदाम में देखते हैं कि और ये बैटरियाँ लेके आओ, तो वो वहाँ से लेके शॉप के अंदर ये वाली बैटरी आ जाएंगी। नरेशन में आप ले दें कि कौन कौन सी बैटरी किस तरीके से ट्रांसफ़र हुई है। आप यहाँ पे बैटरी अब लिख दें कि कौन सी है, फर्स्ट ये वाली है WS 110 में ले लेता हूँ। और ये हमारे पास स्टॉक में है तो ये है ही नहीं है, तो दूसरी में कर लेता हूँ 6FT, ये वाली कर लेता हूँ। तो ये इस लोकेशन में नहीं है, ये इस लोकेशन में 10 पड़ी हुई है, ये शॉप पे पहले से 10 पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से तो ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे, लेकिन मैं अब इसको यहाँ से कर लेता हूँ। फर्ज करें ये गोदाम है, यहाँ से मैं करता हूँ इसको, यहाँ से हम करते हैं शॉप से गोदाम में फर्ज करें कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ शॉप नहीं ना आ रहा है इसलिए एरर दे रहा है वो। अब मैं यहाँ से करता हूँ जी ये वाली करता हूँ। तो ये 3 जो है शॉप पे पड़ी हुई हैं, इस वक्त शॉप पे 3 पड़ी हुई हैं। तो शॉप से मैं गोदाम में लेना चाहता हूँ कितनी बैटरी, फर्ज करें कि 2 बैटरियाँ जो हैं वो मैं गोदाम में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रेट वैसे ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, वैल्यू का है, ताकि पता चल जाए कितनी वैल्यू का स्टॉक इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा। और जब मैं इस पर रिपोर्ट लूँगा तो ये आएगा जी ये बैटरी है, ये 2 बैटरियाँ शॉप से गोदाम में ट्रांसफ़र हो गई हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं लेजर देखना चाहता हूँ, व्यू रिपोर्ट पे गए और यहाँ से गए जी हम स्टॉक रिपोर्ट पे, और मैं यहाँ से ये वाली जो है स्टॉक रिपोर्ट, ये देखें ये WS 110 जो है यहाँ पे स्टोर 1 पे यानी शॉप पे जो है 1 रह गई है और यहाँ पे 2, ठीक है। टोटल आपके पास 3 है। इस तरीके से आप इसको स्टॉक को कर लेते हैं। ये WS 110 मैंने की, ये इसका लेजर मैंने चेक किया, तो ये देखेंगे शॉप पे जो है ये STR स्टॉक ट्रांसफ़र, तो ये 2 यहाँ से माइनस हो गई, यहाँ पे 1 रह गई है, और यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र से 2 जो हैं वो रिसीव हुई है, वो यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो ये 2 हो गई, यहाँ पे बस टोटल 3। इस तरीके से ये आप स्टॉक, अगर किसी के मल्टीपल स्टोर हैं तो वो इस एंट्री को इस्तेमाल करेंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री ये वाली आती है इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की, ठीक है जी। अब फ़ंड ट्रांसफ़र को हम देखते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या है कि बाद का ये होता है कि आप अपने कस्टमर से कहते हैं कि जी आप कंपनी में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दें हमारे अकाउंट में, बैंक में ना करें, कंपनी के अकाउंट में करवा दें। अब उसके लिए आपको काफ़ी एंट्री करनी पड़ती थी पहले, तो इसके लिए मैंने ये आपको फीचर इसमें बना दिया है। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये वाला फ़ीचर एक मैंने चेक किया था। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डेट डालेंगे, जो 25/4/2023 डेट आपने पूरी डाल दी, ये उसका नंबर आ गया। ये रेफरेंस नंबर है, जो भी अगर कस्टमर आपको कहता है जी मैंने ट्रांसफ़र कर दी है तो उसका रसीद नंबर या जो भी आप वहाँ से ले लें और उसका नंबर वहाँ पे हम डाल दें, ठीक है जी। तो ये नंबर था जिसकी वजह से आपने ट्रांसफ़र डाली है, तो ये आ जाएगा यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, किसने किया है ये फर्स्ट करें आपके आसिफ ऑटोज़ ने ट्रांसफ़र किया है, और कितनी अमाउंट की है फर्स्ट करें जी उसने 15,000 उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, और ट्रांसफ़र किसको किया है उसाका को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आसिफ ऑटो ने 15,000 रुपये डायरेक्टली उसाका के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि सिस्टम हमारा आसिफ ऑटोज़ के अकाउंट को भी इफ़ेक्ट दे देगा और उसाका के अकाउंट को भी इफ़ेक्ट दे देगा, और इससे हमारे जो बैंक में चूँकि कैश कोई ट्रांजेक्शन आई नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप लिख दें जी जो
directly transferred by आसिफ ऑटोज टू सबका अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ से आपने लिख दिया और अमाउंट भी आप लिख दें यहाँ पे 15,000 जी ट्रांसफ़र 15,000 अमाउंट जब आप लिखते हैं इसके साथ यहाँ पे लिख दें आप रुपीज़ 15,000 है वो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम आसिफ ऑटो टू ओसाका और इसके साथ 1000 सेपरेटर जो है वो ज़रूर लगाना। 15 के बाद नंबर लग के 3 जीरो इधर रहेगी तो 15,000 डायरेक्टली ट्रांसफर ये अकाउंट आ गया आपका। बस ये आपने एंट्री कर दी है। ये होगी उस केस में कि अगर एक कस्टमर है वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है या एक कस्टमर दूसरे अकाउंट में दूसरे किसी कस्टमर के उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करता है जी उसके अकाउंट में मैंने डाल दिए तो एक का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा दूसरे का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से ओसाका का जो है वो लेजर चेक करें। व्यू रिपोर्ट पे गए, फाइनेंशियल पे गए और अब मैं यहाँ से ओसाका देखता हूँ तो इसके अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं इसमें क्या इफेक्ट आया। तो इसमें क्या हुआ कि 15,000 जो है ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है, फाइनेंस ट्रांसफ़र हो गया और नरेशन में लिखा गया जी ये सारा रेफरेंस। ठीक है ना, 15,000 से वो डेबिट हो गया क्योंकि उसके अकाउंट में चले गए पैसे। और अगर हम इसका देखते हैं आसिफ का अकाउंट देखते हैं तो आसिफ साहब का जो है क्या हुआ कि ये 15,000 रुपये जो है वो इनके क्रेडिट हो गए जो इनके बैलेंस जो है वो लेस हो गए। तो इस तरीके से ये एंट्री आ जाएगी आपकी। एंट्री यही है जो है इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र वाली और फंड ट्रांसफ़र वाली, लेकिन आपने यहाँ से टाइटल आपने ले लेना है बैलेंस ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा जो है एक एंट्री इसी तरह की होती है कि आपके अकाउंट में बैंक में आपके पास पैसे हैं, अब आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई है, अपनी सैलरीज पे करनी है स्टाफ की या कोई और इस तरह के एक्सपेंस करने हैं तो फिर आप उसके लिए करेंगे जी फ़ंड ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। ठीक है, जेवी डालने की बजाय जनरल वाउचर डालने की बजाय कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे कौन सा क्रेडिट करेंगे, आपने सिंपल ये करना है। यहाँ से आपने ये ऐड किया 2 नंबर पे आ गए, यहाँ पे आपने किया जी 25/4/2023। ठीक है, ये आपने एंट्री डाली। ये देखें अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कैश एंड बैंक पोजीशन में यहाँ से देखता हूँ सपोज तो इस वक्त हमारे पास काउंट सेल कैश जो है वो जा रहा है जी माइनस में। ठीक है ना, पेमेंट हमने यहाँ से ज़्यादा कर दी है और रिसीव हमारे पास कम है और ये सारे हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं क्योंकि हमने जो है ना बैंक सही तरीके से हमने डाले नहीं है उसके बैलेंस, ऐसी टेस्ट एंट्रीज करती हुई हैं। और फर्ज करें कि मैं जब हमने ओपनिंग बैलेंस डाले थे बैंक में, जब हमने बैंक स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक में मेरे पास जो है वो फर्ज करेंगे ये 1 लाख है, ये है जी 10 लाख फर्ज करेंगे जी 10 लाख जो है वो मेरा मीज़ान बैंक में मौजूद था। मैं इसको देखता हूँ तो बैंक में ये 10 लाख था, उसमें से ये पेमेंट होगी 5 लाख मेरा बैंक में है। ठीक है, अब मेरा कैश यहाँ पे कम हो रहा है, मैंने देना है तो 5 लाख में से 10 लाख में से 5 लाख ये खर्च हो गया और 5 लाख मजीद रह गया। 5 लाख में से कोई 4 लाख जो ना वो मैं इसमें काउंटर सेल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए ये वाली एंट्री करूँगा यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र। यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र रहने दूँगा क्योंकि बैलेंस नहीं बल्कि मैं फ़ंड ट्रांसफ़र किया है। फ़ंड ट्रांसफ़र कहाँ से किया है मैंने, यहाँ से लिखूँगा मीज़ान बैंक। ठीक है जी, मीज़ान बैंक का अमाउंट जो है वो मैं लिख दूँगा 4 लाख और ये मैंने लिया है काउंटर सेल कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नरेशन में लिखूँगा कि ₹400
1000 ट्रांसफर फ्रॉम निज़ाम बैंक टू कैश। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया आपने। उसके लिए आज के लिए नरेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। इसकी नरेशन आप ज़रूर लिखें कि क्यों ट्रांसफ़र किया है, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र की है। तो ये हो जाएगा मीज़ान से आपने 4 लाख इसमें जमा कर दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। और बस सादा सी एंट्री है, मैट्रिक बंदा है वो भी इसको कर लेगा, तो इसके लिए कोई अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने क्लोज़ किया। अब यहाँ से व्यू रिपोर्ट पे आए, फिर यहाँ से अगेन हम देखते हैं कैश एंड बैंक रिपोर्ट को देखते हैं और ये वाली समरी हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 9 लाख जो है यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रह गया और इसमें रिसीविंग ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 14,400 है। अकाउंट टू सेल कैश का मैं यहाँ से अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आते हैं, व्यू रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, और यहाँ से मैं देखता हूँ अकाउंट टू सेल कैश, ये मैंने किया। तो ये देखिएगा, ये जो है 4 लाख की ये एंट्री आ रही है, क्योंकि ये डेट वाइज करेगा। तो पहले डेट आएगी, फिर उसके बाद ये नंबर आएंगे। तो जिस डेट को मैंने ट्रांसफ़र किया है वो सबसे पहले ये वाली डेट आ गई है। यहाँ से मैंने ये 4 लाख रुपये जो है ये ट्रांसफ़र किया है, फ़ंड ट्रांसफ़र किया है 4 लाख, ठीक है। ये नरेशन भी उसकी आ गई है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखता हूँ मीज़ान का, तो मीज़ान में क्या हुआ, मीज़ान में हमने देखा कि 10 लाख रुपये जो है वो ओपनिंग बैलेंस में था, जिस वक्त हमने अकाउंट ओपन किया है, जिस वक्त हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है, तो 10 लाख रुपया हमारा बैंक में था उस वक्त। और उसमें से ये हमने एक परचेज़ पेमेंट की है इसकी 5 लाख की। फिर उसके बाद जो इसमें 4 लाख जो है ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका बैलेंस 10 लाख से कम हो गया, यहाँ 5 रह गया, 5 में से फिर 4 कम हुआ, तो 1 लाख बैलेंस जो है वो इसमें रह गया, ठीक है ना। यही सेम स्टेटमेंट आपकी जो है वो यहाँ पे जब आप ये चेक करते हैं कैश एंड बैंक रिपोर्ट्स, तो ये समरी आप देखें, ये बैंक इसी तरीके से ये आपका बैलेंस इसमें चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपकी स्टॉक ट्रांसफ़र की और फंड ट्रांसफ़र की एंट्री। अब ये एक इसमें है मेक जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री की आपको इसमें शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये मंथ एंड पे मंथ एंड पे भी नहीं बल्कि ईयर एंड पे अगर आपका अकाउंटेंट है और वो इसके सारे PLS अकाउंट बनाना चाहता है, तो फिर वो इसमें डेप्रिसिएशन के और इस तरह की जो ईयर एंडिंग एंट्रीज़ होती हैं, जनरल एंट्री, वो इसमें फिर पास ऑन कर रहे होते हैं। तो ये फिर जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप पूछ लीजिएगा, ये आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। बाकी जो डेली यूज़ के अंदर होती हैं वो यही है कि आपने परचेज़ किस तरीके से एंटर करनी है, सेल कैसे एंटर करनी है, कोई डेबिट का रेट नोट मंथ एंड पे जो आपको मिलता है वो कैसे आपने करने हैं, और ये जो है ये डेली बेसिस पे पेमेंट आपने करनी है, ख़र्चे आपने रिकॉर्ड करने हैं। तो एंटर कैश एंड बैंक पेमेंट को करेंगे, और जो आपने कैश वसूल किया है, वसूलियाँ हैं आपकी सारी कैश एंड बैंक रिसीप्ट में कैसे आपने एंट्री करनी है। ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको एक दफ़ा समझा दिया है। तो ये इसका जो है एक ओवरव्यू हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको क्लेम्स जो है वो किस तरीके से सेटल करना है, ठीक है। इसकी एंट्री हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।